خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے چوتھے باب کے حوالے سے، 4 چیپٹر کے حوالے سے آج چوتھا پروگرام ہے۔ اس باب کے حوالے سے، اس چیپٹر کے حوالے سے ہم نے خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو نہایت سادگی سے پلین الفاظ میں سیکھا اور سمجھا، اور اپنے اس سیکھنے کے عمل کو، اپنے اس علمی اور روحانی سفر کو ہم جاری رکھیں گے۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اپنی پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں یہ مواقع، یہ اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے پاک کلام سے مستفیض ہو سکیں، برکت پا سکیں، اور اوروں کے لیے بھی، مزید لوگوں کے لیے بھی برکت کا باعث بن سکیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آخری قسم میں ہم نے اس تخت کے حوالے سے سیکھا جس کے آگے 7 چراغ جل رہے ہیں، جن کو خداوند کی 7 روحوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 7 فولڈ اسپرٹ، 7 روحیں سیپریٹ نہیں ہیں، وہ رواق خدش کے فیسٹس ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے سیکھا، ہم نے اس تخت میں سے جو بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ریلیٹ کیا ایگزوڈس 19 کے ساتھ، خروج کے 19ویں باب میں، جب خداوند نے کوہ سینا پر اپنے پاک کلام کو، اپنی دوارین کو، اپنے الفاظ کو، اپنی شریعت کو اپنی قوم کو دیا۔ اور عزیزو، ہم نے ان 24 تختوں اور ان پر بیٹھے 24 بزرگوں کے حوالے سے بھی مختلف جو نقطۂ نظر ہیں، ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور میں 5ویں آیت سے باب کے آخر تک، چیپٹر کے اینڈ تک آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے آگے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور اس تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ آمین۔ عزیز و خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو خداوند کا تخت ہے، جس میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جس کے آگے سونے کے 7 چراغ ہیں، منورہ ہے، جو خداوند کی پاک روح کو، رواق خدش کو، اس کے فیسٹس کو، اس کے کریکٹرسٹکس کو، اس کی فولڈز کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں شیشے کا ایک سمندر نظر آتا ہے جو بلور کی مانند ہے۔ عزیزو، یہ یاد رہے، اٹس لائک اے گلاس سی، اٹس ناٹ اے گلاس سی، یہ سی آف کرسٹل ہے، اور جو ورڈنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سی آف گلاس نہیں ہے بلکہ اس جیسا ہے۔ لکھا ہے گویا شیشے کا سمندر، یعنی ایک مثال دی گئی ہے، ایک تشبیہ دی گئی ہے، ایک ایلیگوری دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں، مختلف نظریات ہیں، کیونکہ جو سمندر کا خدا تھا، کینانیوں کا خدا، اس کو یام کہتے تھے، یام گاڈ، اور کئی دفعہ جو ماڈرن بائبل سکالرز ہیں کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کینانی خدا کے حوالے سے کچھ سمبلزم ہے۔ میں اس خیال کو اس لیے رد کرتا ہوں کیونکہ خداوند کے تخت کے آگے، یہوہ خدا کے تخت کے آگے کسی دوسرے خدا کی سمبلزم، ایلیگوری کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، جو ایک اور نقطۂ نظر ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو برونز لیور تھا، یعنی
खुदावंद की हैकल में जो साफ़ करने के लिए लोगों को रिचुअल इम्प्योरिटी से पाक करने के लिए हौज़ था, उस जैसा, उस तर्ज का ये गोया शीशे का समंदर जो बताया जा रहा है या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, दैट कुड बी दैट, इस ख्याल से कुछ अग्री किया जा सकता है। ताहम ये एक कॉन्टीन्यूस स्टडी है। इस हवाले से आज भी अभी भी हज़ारों लोग रिसर्च कर रहे हैं और बहुत से और ख़यालात और नुक्ता नज़र भी हैं, लेकिन ये दो अहम स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जो याम गॉड के हवाले से और खुदावंद के घर में जो ब्रेजन लेवर था उसके हवाले से, इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने के लिए, नापाकी को दूर करने के लिए जो हौज़ था उसके हवाले से दो अहम ख़यालात थे, उनको मैंने आपके साथ शेयर किए दिए। सुलेमान बादशाह ने जो ये हौज़ बनाया था हैकल में, जिसको मोल्टन सी कहते थे, यानी पिघला हुआ समंदर कहते थे, वो भी काफ़ी ह्यूज था, एलैबोरेट था, वो भी काफ़ी पानी से भरा हुआ जब होता था तो वो इसी तरह ग्लास सी की तरह, मोल्टन सी की तरह नज़र आता था। तो इस वजह से ये तशबीह उसके साथ भी रिलेट की जा सकती है। लेकिन जैसे ही हम इन आयात से आगे बढ़ते हैं, हमें चार जानदार नज़र आते हैं। पहला जानदार बब्बर की मानित, दूसरा जानदार बछड़े की मानित, तीसरा जानदार इंसान सा चेहरा रखे हुए है और चौथा जानदार उकाब की मानित। अब ये जो आयात हैं ये बहुत पुरतगय्युर हैं, इनके हवाले से बहुत से लोग घबराते हैं और समझने की बजाय और सीखने की बजाय फिर वो रेवलेशन को पढ़ने से ही दूर हो जाते हैं। अजीज़ों, रेवलेशन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से हवालाजात खुदावंद के कलाम के तनाख के हिस्से के हैं, पुराने अहदनामे के हिस्से के हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के हैं। और अगर हम इज़ीकियल की किताब देखें, हिजकियल की किताब, उसका पहला बाब और 10वीं आयत, इज़ीकियल 1:10, तो हमें वहाँ पर इस नौयत की रिलेटेड रेलेवेंट तशबीहात नज़र आती हैं। लेट्स रीड, आए उसे पढ़ते हैं। उनके चेहरों की मुशाबहत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाएं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था। आमीन। अजीज़ों, इन तशबीहात की, इन तस्वीर की, इन इलामतों की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। हम बहुत ज़्यादा इस हवाले से डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ अजीज़ों कि खुदावंद के कलाम को सीखने की, समझने की और उसको पढ़ने की हम सबों को बहुत ज़रूरत है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके हवाले से बहुत सी कुंजियाँ, बहुत सी कीज़, बहुत सी चाबियाँ हमारे हाथ आती हैं, जिसके रेफरेंस से, जिसके हवाले से हम मुश्किल गुत्थियों को, हम लॉक्ड बातों को, जो बातें मुकफ़्फ़ल हैं, जो बातें छुपी हुई हैं, जो बातें हिडन हैं, उनको खोल सकते हैं। उनके हवाले से अपनी सोच के दायरे को, अपनी इल्मियत को वसी कर सकते हैं, खुदावंद से बरकत पा सकते हैं। और इन सिंबल्स के हवाले से, इन तशबीहात के हवाले से, जो बब्बर की, बछड़े की या बुल की या इंसान की और जो उड़ते हुए उकाब की हैं, ईगल की हैं, इस हवाले से हम खुदावंद के पाक कलाम ही में से सीख सकते हैं। अजीज़ों, खुरूज की किताब में हम जानते हैं कि 12 जो कबाइल थे, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल थे, जब वो विल्डरनेस में, बियाबान में थे, तो उनको जो ख़ास निशान दिए गए थे, उनके ट्राइब्स के, उनके कबाइल के जो निशान थे, वो प्रीस्ट की, सरदार काहिन की ब्रेस्ट प्लेट पर मौजूद थे। और वो उनको कीमती पत्थरों के निशान भी मिले थे, और उनके जो झंडे थे, उनके जो फ्लैग्स थे, उन पर उनके कबीले का अपना निशान भी होता था। अब 3 ट्राइब्स का एक ग्रुप होता था और उसमें से जो डोमिनेंट लीडर होता था वो उन 3 ट्राइब्स का हेड होता था। तो 3 ट्राइब्स की जो इकट्ठ है, 3 ट्राइब्स का जो झुंड है, जो जमायत है, उसका एक लीडर होता था। तो टोटल 12 ट्राइब्स हैं। इस तरह
4 ट्राइबल लीडर्स होते थे। 4 सिमतों में भी ये होते थे, 4 डायरेक्शंस में भी ये होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो ब्रेस्ट प्लेट में हमें 12 पत्थर नज़र आते हैं उसमें भी हम 3-3 की रोज़ देखते हैं। देयर आर 4 रोज़ इन टोटल बट 3 स्टोन्स, 3 ट्राइब्स इन ईच। अब जो 4 ट्राइबल लीडर्स थे या जो 4 कबायली रहनुमा थे, कबीले थे जो कि लीड करते थे चारों सिमतों में से, वो एक सिमत में एक डायरेक्शन में रूबन था, दूसरी डायरेक्शन में दान था, तीसरी डायरेक्शन में जूडा था और चौथी डायरेक्शन में इफ्राइम था। मैं इनको फिर रिपीट किए देता हूँ। एक सिमत में एक डायरेक्शन में रूबन, दूसरी में दान, तीसरी में जूडा यहूदा और चौथी में इफ्राइम। और इन चारों ट्राइब्स के, इन 4 ट्राइब्स के ख़ास सिंबल्स थे, उनके ख़ास लोगोस थे। और जब आप इनके हवाले से सुनेंगे तो आप जानेंगे कि ये तो कमाल बात है, ये तो अमेजिंग बात है। और ये कोई इत्तफाक नहीं है अजीज़ों, ये खुदावंद का प्लान है, ये खुदावंद का ब्लूप्रिंट है इस सारे सिस्टम का, जिसको हमें समझने की और सीखने की ज़रूरत है। अब जो दान के ट्राइब का सिंबल है, डैन्स ट्राइबल सिंबल है, वो थोड़ा मिस्टीरियस है, लेकिन बाकी जो हैं उनको जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जूडा के हवाले से, यहूदा के हवाले से हम जानते हैं कि वो शेर बब्बर का साइन रखता है और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को, यहोशुआ मसीह को यहूदा का बब्बर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बब्बर की शक्ल है वो फिर हमें पता चलता है अच्छा ये यहूदा का है। तो दूसरा जानदार अगर बछड़ा है वो कैसे हम जानेंगे? बछड़े का जो साइन है या मेल ऑक्स का जो साइन है अजीज़ों, वो इफ्राइम के कबीले का था। तो इफ्राइम उन 4 कबायली लीडर्स में से था। फिर हम जानते हैं कि जो रूबन का साइन है वो एक मैन का है, एक ह्यूमन बीइंग का है। तो आदमजात का जो साइन है वो भी हमें नज़र आ जाता है। फिर दान का जो साइन है वो एक फ्लाइंग स्नेक का था और ट्रेडिशनली उसको ईगल के साथ डिनोट किया जाता था, उकाब के साथ उसको डिनोट किया जाता था। तो ये भी यहाँ पर कवर हो जाता है। तो 4 डोमिनेंट लीडर ट्राइब्स जो 12 कबाइल को रिप्रेजेंट करते थे, 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते थे, उनका एक सिंबल है। और वो सिंबल हमें यहाँ पर आसमान में उस तख्त के सामने उन जानदारों के ऊपर नज़र आ रहा है जिनको सिर्फ यूहन्ना ने नहीं बल्कि इज़ीकियल, हिजकियल ने भी देखा था। हाउ अमेजिंग इज़ दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। खुदा का कलाम कितना खूबसूरत है, खुदा का कलाम कितना शानदार है। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं और इस बात के लिए कि वो हमें पाक कलाम के इन भेदों को समझने का फजल बख्शता है। सारा जलाल हमारे आसमानी बाप को मिले। और इन 4 जानदारों के हवाले से जो कि इसराइल की 12 कबाइल की नुमाइंदगी करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ये स्ट्रेंज क्रीचर्स तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये अजीब मखलूक हैं। लेकिन हम उनके 6 जो पर हैं और उनकी जो आँखें हैं उस हवाले से भी मुख्तसर सीख लें। बाकी जो तफसील से सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स अपनी तहकीक तफ्तीश जारी रखेंगे, वो अपनी रिसर्च जारी रखेंगे। लेकिन मैं आपके लिए ईसाया का 6 बाब पढ़ना चाहता हूँ, आइज़ाया चैप्टर 6। वहाँ पर क्या लिखा है? और जिस साल उज़ाया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई और उसके आस पास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, आमीन। अजीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि अगरचे इन जानदारों के हवाले से, इन क्रीचर्स के हवाले से, इन लिविंग बींग्स के हवाले से यूहन्ना ज़्यादा नहीं बता रहे, लेकिन यसाया की किताब में यसाया उन्हें सराफीम कहते हैं। वो आसमानी फरिश्ते हैं जो खुदावंद के तख्त के सामने हैं, जिनकी आंखें ही आंखें हैं। आंखें देखने को जाहिर करती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि वो सब कुछ देखते हैं। वो मुझे और आपको देख रहे हैं, हमारे हर एक फेल को देख रहे हैं। उनकी आंख से जो कि खुदावंद की तरफ से उनको मिली हुई हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। आए
اپنی زندگیوں کو جانچیں کہ خداوند کی یہ آنکھیں، یہ کیمراز جو ہماری زندگیوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمیں خداوند کے تخت کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور یہ نہ صرف سب کچھ دیکھ رہے ہیں بلکہ عزیزو یہ خداوند کی پریز کر رہے ہیں، یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اس کی تمجید کر رہے ہیں، یہ اس قدوس کو، یہ اس خدائے برحق کو ورشپ کر رہے ہیں۔ عزیزو اگر ایسے جاندار جو خداوند کے تخت کے آگے کھڑے ہیں وہ اس کو ورشپ کرتے ہوئے، پریز کرتے ہوئے نہیں تھکتے، تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے خدا کی تعریف، تمجید، ستائش، عبادت کرتے ہوئے ہرگز نہیں تھکنا۔ آئیں اپنی زندگیوں کو خداوند کے جلال کے لیے مخصوص کریں اور اس کی تعریف کریں اور اس کی تمجید کریں اور اسی کے نام کو مبارک کہیں۔ آمین۔